आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक इशू के ऊपर बातचीत हुआ था एंड दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल मीडिएशन. व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द reason? The thing is that ultimately, because this conference was organized today itself for the purpose of the global mediation, as far as the role of mediation is speedy going on, not in the country but in overseas. So that's why this conference was organized and fixed today. And number of dignitaries came here and they have joined the conference and delivered the addresses to the gathering. Now the question is that number of litigations are coming from trial court to highest court. But thing is that ultimately there is no solution, there is no ending process. So that's why mediation is playing a very vital role to resolve the matters, to resolve the litigation across the country. As far as we are the citizen of India, we always feel better for the betterment of today and tomorrow for the common people and the litigants. So that's why this conference was organized, and we were benefited by delivering the addresses to each and every one, because number of people from either from the legal fraternity or the common society came here to get the knowledge. After all, what can be done for the betterment and for to resolve the dispute as in early days as in a speedy way. So that's why it happened today itself. तो पेंडिंग केसेस को कितना स्पीडी में लाया जा सकता है सो दैट द पेंडिंग केसेस विल बी द रिड्यूस इन ए बर्डन फॉर द कॉमन मैन. ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसा आपने पूछा है मैं वैसा ही जवाब दूंगा. और सच बात यह है कि मीडिएशन एक कंसिलिएशन और नेगोशिएशन के बाद मीडिएशन का जो रोल है ट्रायल कोर्ट से लेकर के जिला न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक लगातार बढ़ता जा रहा है. और इसके जो रिजल्ट्स है, जो परिणाम है, वो भी बेहतर परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज को वहां बैठाया जाता है. एक बेस्ट मीडिएटर होते हैं, क्वालिफाइड मीडिएटर होते हैं, ट्रेंड मीडिएटर होते हैं, जो उनको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं. देखिए, लड़ने से कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता है. और यदि चाहें तो आप आज भी इस चीज को क्लोज कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं, ताकि आपके परिवार में शांति, सुख और अच्छा वातावरण पैदा हो सके. आप अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे और समाज पे ध्यान दे सकें. और इसका फायदा परिवार समाज को ही नहीं होता है, हमारे देश को भी इसका फायदा होता है. जितने कम लिटिगेशन होंगे, जितने कम वाद विवाद होंगे, उनसे हटके हम देश की उन्नति और प्रगति के बारे में बात करेंगे तो शायद ये बेहतर होगा. और इसलिए मीडिएशन के रोल को लगातार हमारी हाईएस्ट कोर्ट जितनी भी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, या हमारी जितनी भी डिफरेंट उच्च न्यायालय हैं, वो भी मीडिएशन को लगातार लेकर के बहुत गंभीर है, सीरियस है, और लगातार इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि भाई इसमें कहीं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए. इसके लिए जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, वो सरकारें भी और हमारी उच्चतम न्यायालय भी लगाने के लिए तैयार है. लेकिन इसको बेहतर बनाया जाए ताकि लिटिगेशन को कम से कम किया जा सके. इसका फायदा मैसेज टू द कंट्रीमैन एंड the court and judicial court and the high court and supreme court. Nowadays, because we are giving the best message to the country, no, even from the common man to the highest court, because we are here only to get the knowledge and the exposure over the mediation. After all, mediation playing as far as I already stated, playing the very vital and the very important role, significant role. So that's why that is the time to come forward for mediation to resolve the matters. I say to each and everyone from every people, either belongs to a legal fraternity or the business houses, and or from the common man, common society. So that's why everyone should come forward to resolve the matter through mediation. आप अपना नाम बताइए. मैं पवित्र मोहन शर्मा, PM Sharma, Advocate, Supreme Court of India. I am running my own law firm, PM Sharma and Company. I am here only to join this global mediation. So that's why I got. Thank you very much. मीडिएशन अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि क्या है, मैटर्स लगातार बढ़ रहे हैं. लिटिगेशन आपका कहना है कि स्पीडी कैसे हो, तो स्पीडी होने के लिए मीडिएशन बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या है कि डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मीडिएशन क्या एक प्रोसेस है डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने का.
ना कि कोई ट्रायल फेस करके केसेस को खत्म करने का। तो मीडिएशन कहीं ना कहीं स्पीडी केस डिसॉल्व करने में काफी हेल्प कर सकता है और कर भी रहा है लगातार। तो इसलिए मीडिएशन तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है अभी जुडिशरी में है, लिटिगेशन में, और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट में होना चाहिए ये मीडिएशन। होना भी चाहिए और हो भी रहा है बहुत अच्छे स्तर पे काम मीडिएशन से, जो कि मैटर्स है जो कि सालों साल 20-20 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो हो सकते हैं 2-3 साल में भी डिफरेंसेस उनके रिजॉल्व होके खत्म हो जाते हैं वही केसेस। अदरवाइज वही मैटर्स आपके 10 साल 20 साल की वही चलते चल रहे हैं। तो नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू मैडम। वेलकम। मैं अपने इस एड्रेस में मैसेज में एक बात ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में पारिवारिक विवाद, फैमिली मैटर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोइंग हो रहे हैं, लगातार ग्रोइंग हो रहे हैं। साथ में चेक बाउंसिंग को लेकर भी हमारे देश में बड़ा भारी बर्डन न्यायालयों पर, अदालतों पर रहा है। ऐसे में जहां हम ग्लोबल मीडिएशन को लेकर के आए हैं और खास तौर से मीडिएशन की हम बात कर रहे हैं, मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, उन मतभेदों को, उन डिफरेंसेस को हम मिटाने की बात कर रहे हैं, तो खास तौर से जहां छोटे बच्चे फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उन परिवारों को टूटने से बचाने के लिए मध्यस्थता एक सबसे अच्छा माध्यम है, जिसके लिए हमारे देश की सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, मैं विशेष रूप से इस बात के लिए श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को और श्री अमित शाह जी को भी इस बात का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारत के न्यायालयों को अधिकतर फंड्स दे करके ऐसे प्लेटफॉर्म स्थापित करने का काम किया है, विशेष रूप से मीडिएशन को लेकर के जो काम किया है। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारे देश के न्यायालयों में कम से कम विवाद रहें, और 2023 में जो उन्होंने हमारे 3 कानूनों को में जो परिवर्तन किया है, उससे हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पक्षकार उससे लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने आईपीसी को, सीआरपीसी को और साथ में हमारे एविडेंस एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है और न्यायालय के माध्यम से इसमें मध्यस्थता अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। मैं इस संभावना के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मध्यस्थता आने वाले समय में अपना बड़ा मूल्य जो है अदा करेगी, और विशेष रूप से न्यायालयों में वादों की संख्या लगातार कम हो जाएगी, और हम देश की उन्नति और प्रगति के बारे में आगे की बात सोच सकेंगे। ऐसा जी भाई, जो मिलजुल कर जो पंचायत गांव में होती थी, हाँ, जैसे सरपंच की भूमिका रहती थी गांव में, ऐसे मध्यस्थता सबसे बेटर ऑप्शन है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए। काफी लंबा समय तक बस हो गया, इतना ही बहुत है। मध्यस्थता पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मध्यस्थ में जो मैन हो वो बंदर जैसा ना हो, नहीं तो बिल्लियों और बंदर ने जो लूटा है वो ही हो रहा है। It is a scientific way, the mediation, global mediation जो आज कॉन्फ्रेंस हुए है, it's a scientific way, this is the way। इसके अंदर एक और है कहानी, जिसके अंदर मुंशी प्रेमचंद की थी, जिसके कारण मीडिएशन में लोग मीडिएटर से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता नहीं होती। हर आदमी अपना पक्ष सीधा करना चाहता है, और इसलिए एक तो जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी और बंदर और जो उसकी कहानी थी बिल्लियों की, उस पर ध्यान जरूर दें। अब अपना नाम बताइए। नरेंद्र शर्मा।